حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور مقولہ اور ارشاد جو اکثر عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں کسی مسجد تشریف لے گئے، دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی، ایک اچھی رونق بنی ہوئی تھی، تو اس رونق کو دیکھ کر فرمانے لگے، عمر اللہ تجھے تیرے قبر کو بھی ایسے ہی انوار سے بھر دے اور چمکا دے جس طرح تو نے اللہ پاک کے گھروں کو نور سے بھر دیا اور چمکا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک وہ تو ویسے بھی نور سے بھرا ہوا ہے، وہ تو اس ہستی کے پڑوس میں ہیں جس پر 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، اللہ پاک کی انوار کی برسات برستی ہے، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی اس خوشی اور اس جذبات کی ترجمانی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک تیرے قبر کو بھی ایسے ہی منور کر دیں جس طرح تو نے مساجد کو منور کر دیا۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شان کے مطابق خیر عطا فرمائے کہ اس مبارک نماز پر امت کو جمع فرمایا۔ یہ تراویح باجماعت اس طرح ادا کروا لینا یہ میرے پیغمبر کی بھی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سنت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مشقت کے لیے پیش کرنا۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس نے نام نہیں سنا ہوگا، کون اس کے کردار سے واقف نہیں ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں اگر صحیح معنوں میں کوئی شیخ الاسلام ہے تو وہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے کراچی کے اس خالق دینہ ہال میں، خالق دینہ ہال جہاں ریڈیو پاکستان ہے اس کے برابر میں سامنے خالق دینہ ہال ہے، یہاں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، انگریز جج تھا، تو اس نے حضرت مدنی سے پوچھا کہ آپ نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیکھا اور فرمانے لگے، معلوم ہونا کیا ہوتا ہے؟ اپنا بریف کیس کھولا، فرمایا تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ اس فتوے کی سزا تخت اعدام پہ لٹکنا ہے، پھانسی ہو جانا ہے، کہ جو یہ فتویٰ دے گا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی حرام ہے تو ہم اس کو تخت اعدام پہ لٹکائیں گے۔ میں جب دیوبند سے نکلا تھا تو میں اپنا کفن ساتھ لے کے آیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کے بدلے میں مجھے تخت اعدام پہ لٹکایا جائے گا، اور یہ میں اپنا کفن اپنا ساتھ لایا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر، یہ حضرت مدنی رمضان میں ان کا معمول افطاری فرماتے، افطاری کے بعد 6 رکعت نوافل میں آپ 125 پارہ پڑھتے، پھر تھوڑا سا وقفہ فرماتی، پھر تراویح کی نماز ہوتی۔ تراویح کی نماز میں حافظ کم سے کم 3 پارے پڑھتے، پھر تھوڑا سا وقفہ ہوتا، پھر تہجد کی نماز حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح حرمین میں قیام اللیل ہوتا ہے اسی طرح کسی شاگرد اور حافظ کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے باجماعت پڑھتے، ان میں بھی 2.5-3 پارے کی تلاوت ہوتی سحری تک، اور پھر دن
पूरे 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 घंटे आराम किया करते थे। ये बाकी सारा दिन रात ये इबादत में गुजर जाया करता था। तो हम तो उनके नाम लेवा हैं, हमें रमजान उनकी तरह गुजारना चाहिए। सोकर गुजारना, रात भर लाहो लाभ में मशगूल होना, ये कोई रमजान नहीं होता है। रमजान वो हो जो इबादत में गुजरे, जो इबादत में मसरूफ और मशगूल होकर इंसान गुजारे, वही रमजान हुआ करती है। और अभी तो थोड़ा सा ज़ौफ़ और कमजोरी हो गया। हजरत मौलाना नजरुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम जो हमारे तबलीगी जमात के अभी अमीर हैं, अब थोड़े से कमजोर हो गए, लेकिन अब तक 2-2.5 साल पहले तक उनका मामूल था मगरिब के 6 रकात नवाफिल में 1.25 पारा पढ़ना। हालांकि वो हड्डियों का ढांचा है और आप तो बहुत ज्यादा कमजोर, यानी चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन जब तक खुद चल फिर सकते थे तो मैंने उनके बेटे से पूछा, इत्तेफाक से उनके बेटे का नाम भी अब्दुर्रहमान है, मैंने उनके बेटे से पूछा कि हजरत के मामूलात, तो उन्होंने और भी बहुत सारे मामूलात बताए। एक मामूल ये भी बताया कि अब्बा जी का हमें याद नहीं, हमारी याद से पहले वो मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नवाफिल में 1.25 पारा पढ़ते हैं। तो अपने आप को, अपनी जिंदगी को इबादत में मसरूफ कर लें। अल्लाह पाक हम सब को ये तौफीक दें कि हमारी रमज़ान और हमारे गैर रमज़ान वो इबादत में मसरूफ होकर गुजरें, अपनी ज़िंदगी और अपनी वक्त की कदर करें। गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं तो मुझे सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा नदामत उस वक़्त होती है जब मेरी ज़िंदगी की कोई 1 साल, कोई 1 घड़ी वो इबादत के बगैर गुजर जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान, और उसको मुफस्सिर कुरान पाक मैंने और आपने नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुम्हारे उम्मत का कुरान पाक का सबसे बड़ा मुफस्सिर। वो फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज़ पर कोई नदामत नहीं, कोई अफसोस नहीं, लेकिन जो वक्त अल्लाह पाक के इबादत के बगैर गुजर जाए मुझे उस पर नदामत आती है। अल्लाह का एक और वली कहता है कि मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है कि जब मेरी कोई 1 साथ वो अल्लाह पाक की इताअत और ताबेदारी के बगैर गुजर जाए, फरमाते मुझे शर्म आता है, हया मुझे आती है। क्या लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की कदर की, उन्होंने जिंदगी की कदर पहचानी। तो अपनी जिंदगी की कदर करें और अपनी जिंदगी की कदर पहचानें, और फिर खुसूसन रमज़ान अल मुबारक की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपने बंदों के साथ बहुत सारे वादे फरमाए हैं। मैं उनमें से सिर्फ 4 वादे आपके सामने रखता हूं और फिर दुआ करा लेता हूं। बहुत सारे वादे, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 वादे जो अल्लाह पाक ने अपने बंदों से फरमाए हैं। अब रब ने हमसे क्या वादा फरमाया है और हमने उस वादों को कितना पूरा किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। रब का वादा है, मेरे बंदू तुम्हें कोई हाजत पेश आए, तुम्हें कोई ज़रूरत पेश आए, तुम परेशान हो जाओ, तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए, तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में कोई तंगी आए, तो फरमाया कि गैर के दरबार पे न जाना। ख्वाह वो गैर कोई वली हो, ख्वाह वो कोई नबी हो, ख्वाह वो कोई गौस हो, ख्वाह कोई वो मुत्तकी हो, ख्वाह कोई मुहद्दिस हो, ख्वाह कोई मुफस्सिर हो, कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदो उदऊनी, मुझे पकारो, मुझे आवाज लगाओ, मेरे सामने फरियाद करो। ए अल्लाह, फरियाद करेंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा? पहला वादा फरमाया अस्तजिब लकुम, अस्तजिब लकुम।
मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। ये रब का वादा है। मुझे पुकारोगे, मुझसे मांगोगे, तो रब फरमाते हैं मेरा वादा है, मैं तुम्हारे वादों को पूरा करूंगा। सहाबा ने आकर अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अकरीबुन रब्बुना फनुनाजी अम बईदुन फनुनादी, हमारा रब करीब है कि हम सरगोशी करें, या हमारा रब दूर है कि हम चीख चिल्लाकर ऊंची आवाज से पुकारें। आप खामोश हुए, जिब्रील तशरीफ लाए, कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, व इज़ा सालक इबादी अन्नी, मेरे महबूब जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे। ये सवाल और जवाब, ये अल्फाज, ये अंदाज कितना प्यारा है। मेरे हबीब जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे कि मैं करीब हूं कि मैं दूर हूं, तो आप जवाब दीजिए फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं। रब्बा आप कितने करीब हैं? फरमाया बंदे मैं तेरे शह रग से भी ज्यादा करीब, मैं तेरे जिंदगी के रग से भी करीब, अगर वो कटे तेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मैं उससे भी ज्यादा करीब हूं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदे तुझसे मेरा वादा है कि जब तकलीफ हो मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ, तुम्हारी फरियाद को कबूल करूंगा। यह अल्लाह पाक का एक वादा। और रमजान में रोजादार की अफ्तार और सहरी की दुआ रद्द नहीं होती। वालिद की दुआ अपने औलाद के लिए रद्द नहीं होती। तो आम हालत में भी रब से दुआ करें, रमजान में खुसूसियत से दुआओं का एहतिमाम करें। किसका एहतिमाम करें? दुआओं का, दुआओं का। हाँ, कोई ऐसा है जो मोहताज ना हो? है ऐसा कोई? ऐसा कोई है जो फकीर ना हो? ऐसा कोई है जिसको अल्लाह पाक के दरबार से मांगने की जरूरत ना हो? है कोई? नहीं। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, अंतुमुल फुकरा, अंतुमुल फुकरा। ए मेरे बंदो, तुम गरीब हो, तुम फकीर हो, तुम नादार हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मस्कीन हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? जब तुम दुनिया में आए थे तुम्हारे पास क्या था? जब आए थे दुनिया में तो क्या था? लिबास था, पगड़ी थी, माल दौलत सरमाया। और जब रब के दरबार हमें भेजा जाता है तब क्या होता है? फिर क्या होता है? कफन भी नसीब वालों को मिलता है, कफन भी नसीब वालों को मिलता है। रब के दरबार में जाते हुए कुछ नहीं लेकर जाते हैं। तो फरमाया बंदो तुम फकीर हो, मुझसे मांगो। दूसरा वादा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मेरे बंदो फज़कुरूनी, फज़कुरूनी, मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मेरी तस्बीह, मेरी तहमीद ये बयान करते रहो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन कलिमात से मुझे याद कर लिया करो, मेरा जिक्र कर लो। बदले में अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदे मेरा वादा है अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें भी याद करूंगा। रब वादा करता है। मेरा और आपका वादा क्या होगा? यहां वादा वहां खिलाफ वर्जी, वहां वादा यहां खिलाफ वर्जी। और अल्लाह पाक इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाते। तो फरमाया बंदे मुझे याद करो, बदले में मैं तुम्हें याद करूंगा। और याद भी कहां करूंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा बंदा मुझे यहां याद करता है, इस मजलिस में याद करता है, हम अल्लाह का जिक्र अभी यहां करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुझे मलाए आला, सबसे बेहतरीन मजलिस, सबसे आला मजलिस, सबसे ऊंची मजलिस, फरिश्तों के हां तेरा जिक्र करता हूं। तू मुझे अपने दिल में याद करता है, दिल में याद करता है, अकेले में बैठकर
तस्बीह के दाने पर कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई सुनने वाला नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं फिर तुम्हें फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूं। तो अल्लाह पाक का दूसरा वादा कि बंदे मुझे याद करो, मैं बदले में तुम्हें याद करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मशहूर वाकया हदीस कि अल्लाह पाक के दरबार में अर्ज किया कि अल्लाह मुझे कोई अमल बता दीजिए, मुझे कोई विर्द दीजिए, मुझे कोई वजीफा बता दे। वजीफा हम आते हैं ना इमाम साहब वजीफा दे दें, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वजीफा मांगा तो अल्लाह पाक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्ज करने लगे ये तो सारी मखलूक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है, मैं तो तेरा कलीम हूं, मैं तेरा खास हूं, मुझे कोई खास लफ्ज दे दे, कोई खास लफ्ज। जिस तरह हमसे भी आकर कोई कहते हैं ना इमाम साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है, कोई खास वजीफा दे दें, वो वजीफा दे दें जो आप खुद पढ़ते हैं, वो वजीफा मुझे दे दें। यहां अल्लाह पाक के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है रब्बा कोई खास विर्द, कोई खास वजीफा। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा ये सारी कायनात तराजू के एक पल्ले में रख दी जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह तराजू के दूसरे पल्ले में रख दी जाए, फरमाया वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला वजनी हो जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हजारों के तादाद में पढ़े, बेशुमार पढ़े, इसलिए कि हम जो खाते हैं रब गिन के नहीं देता, रब बेशुमार देता है। अब सोचें आज आप लोगों ने अफ्तारी की, अफ्तारी से लेकर अभी तक आप लोगों ने कितना पानी पिया है, कितने घूंट कितने कतरे शुमार किए हैं, शुमार कर सकते हो? अगर अल्लाह पाक ये फरमाएं कि बंदे अफ्तारी से लेकर सहरी तक आपने सिर्फ 3 घूंट पीना है, फिर बताओ बर्दाश्त कर लेंगे हम? कितना मुश्किल होगा। यहां अल्लाह पाक देता है, बेहिसाब देता है, और हम जब अल्लाह को याद करते हैं तो गिन गिन कर अल्लाह को याद करते हैं कि जी 100 दफा याद करना है, 33 दफा याद करना है, 34 दफा याद करना है, 200 दफा याद करना है। रब तो तुझे बार बार याद करता है और तुम रब को घिन घिन कर याद करते हो। तो फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद करो बदले में मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह पाक का ये दूसरा वादा कि मेरे बंदे मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। रब का तीसरा वादा अल्लाह पाक ने बंदे से क्या फरमाया है, बंदे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं नेमतें तो तुझे अता कर रहा हूं, तू फरमाबरदार है, ताबेदार है, नमाजी है, रोजादार है, हाजी है, तहज्जुद गुजार है, फिर भी मैं तुझे खिलाता हूं। तू नाफरमान है, बागी है, बेनमाजी है, बेरोजा है, फासिक है, फाजिर है, उसके बावजूद फिर भी खिलाता हूं। खिलाता दोनों को है, बल्कि नाफरमान को ज्यादा अच्छा खिलाता है, ज्यादा खिलाता है, उसको अच्छा खिलाता है। क्यों? उसकी तो सिर्फ दुनिया है ना, उसकी तो सिर्फ दुनिया है। अगर आप बोर ना हो जाए तो मुझे एक वाकया याद आया है, अर्ज कर दूं? हाँ, जो बोर हो गए वो बता दें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में थे। आपका घर मदीने से थोड़ा सा बाहर था और मामूल यह था कि एक दिन आप हजरत की मजलिस में होते थे और एक दिन आप घर में होते, आपका पड़ोसी आता था। जिस दिन आप घर में होते तो अपने और अपने पड़ोसी के घर का ख्याल रखते, अपने घर की जरूरियात उनके घर की जरूरियात पूरी करते। जिस दिन आप हुजूर के मजलिस में होते तो आपके पड़ोसी अपने घर का भी और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर का ख्याल भी करता था और उनकी जरूरियात पूरी किया करते थे। अब जिस दिन हजरत उमर हुजूर के मजलिस में होते, मगरिब को जाते और उनको बता देते आज हजरत पर यह आयत नाजिल हुई,
آج یہ حکم ارشاد فرمایا، آج یہ فرمایا، آج یہ فرمایا۔ جس دن اس کا پڑوسی آتا تو وہ آ کر بتا دیتا کہ جی اللہ کے نبی نے آج یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ ایک دفعہ وہ پڑوسی آیا اور زور زور سے حضرت کا دروازہ بجایا، حضرت عمر کا۔ ایک دم بھاگتے ہوئے آئے، کیا ہوا؟ اس نے کہا بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ اس وقت غسان کے بادشاہ کی طرف سے یہ افواہ تھی کہ وہ آج مدینے پر حملہ کرے گا، کل مدینے پر حملہ کرے گا، آج مدینے پر حملہ کرے گا، کل مدینے پر حملہ کرے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا غسان کے اس کتے نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، اس سے بڑا واقعہ ہو گیا۔ حضرت عمر پریشان، بتاؤ کیا واقعہ ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ حضرت عمر کا سانس جہاں تھی وہاں رک گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں طلاق دی؟ اور ان ازواج مطہرات میں حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے۔ پریشان آئے، سیدھا مسجد نبوی میں صحابہ کو دیکھا، کچھ یہاں بیٹھے، کچھ وہاں، کچھ وہاں، سارے پریشان، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ان کو اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہمیں نہیں معلوم۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں ایک بالاخانہ بنا ہوا تھا، اس پر تشریف فرما تھے، اور ان دنوں میں حضرت کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، خطلوا موچ آ گئی تھی، یہ جو گٹی ہے یہ نکل گئی تھی، تو حضرت چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، تو اس بالاخانے میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، دوبارہ اجازت میں مانگی، پھر نہیں ملی، تیسری دفعہ اللہ کے نبی نے خادم سے کہا عمر کو بلاؤ، آ گئی، سلام کیا، بیٹھے۔ اللہ کے محبوب آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے، جان میں جان آ گئی۔ فرمایا اچھا۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جب ہم مکے میں تھے ہم طاقتور تھے، ہماری بیویاں ہم سے ڈرا کرتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہم کہاں تھے؟ مکے میں، ہم زوراور تھے، ہم طاقتور تھے، تو ہماری بیویاں ہم سے ڈرا کرتی تھی، اور ہم مدینے میں آئے تو یہ تو شہر کے لوگ تھے، یہ مدینے والے انصار یہ شہر کے لوگ تھے، ان کی بیویاں ان پر زوراور تھی، ان کی بیویاں ان پر حاوی تھی، ہماری بیویوں نے ان کو دیکھا تو یہ بھی ہمارے اوپر زوراور ہو گئی۔ مقصد تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کو ہنسانا، خوش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ جو داڑھ والے پہلے دانت ہیں نا، یہ دانت نظر آنے لگے، نواجذ جس کو کہتے ہیں، یہ والے دانت نظر آنے لگے۔ حضرت عمر، جو بتانے والا ہوں، حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر چٹائی پر آرام کرتے ہیں، تو وہ چٹائی کے انہوں نے آپ کے پہلو پر نشان لگائے ہوئے ہیں۔ سادہ چٹائی پر آدمی بیٹھے تکیہ لگائیں تو اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، تو حضرت کے پہلو پر، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پہلو پر وہ نشانات پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، یوں ہاتھ پہرا، کتنے خوش نصیب لوگ تھے اور کیا خوش نصیب معاشرہ تھا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں رزق کی فراوانی دے دے، رزق کی فراوانی دے دے اللہ پاک ہمیں۔ دیکھو یہ روم کسرا فارس والے اللہ کو نہیں مانتے اور کھائے جا رہے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، انہوں نے اپنا رزق دنیا میں کھا لیا، یہ بات بنیادی طور پر عرض کرنے والا تھا، انہوں نے اپنا رزق دنیا میں کھا لیا، اور ہمارا رزق اللہ پاک نے جنت میں ہمارے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے، وہاں اللہ ہمیں کھلائے گا۔ تو اللہ پاک تابعدار کو بھی کھلاتا ہے، نافرمان کو بھی کھلاتا ہے، اور کھلاتا بے حساب ہے۔ لیکن ہم جب یاد کرتے ہیں اللہ کو تو ہم گن گن کر یاد کریں، اور ہم اللہ پاک کے نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے،
नाशुक्री करते हैं, भाई हमारे पास है ही क्या, मुझे अल्लाह ने क्या दिया है। वो फलाने को देखो 3 बिल्डिंग है उसके, हर बिल्डिंग में 10-10 घर है और हर घर का 10-10 हजार किराया है, देखो उसका इतना वो बैलेंस है और मैं तो किराए के मकान में रहता हूं। वो फलाने को देखो उसकी फैक्ट्री है और महीने की 5 लाख 10 लाख की आमदन है और मेरा 30,000 तनख्वाह है, उसमें 10,000 किराए का चला जाता है, 10,000 बिजली का बिल चला जाता है, 10,000 गैस का बिल चला जाता है, मैं क्या करूं, बच्चों को मार दूं। हालात तो यही चल रहे हैं ना जो हमारे यहां है, हमारे आमाल भी और हमारे हुक्मरान भी, ना हमारे आमाल काबिल हैं ना हमारे हुक्मरान काबिल हैं। अफसोस दोनों पर हैं, अपने अमल पर भी हैं और अपने हुक्मरानों पर भी है। एक तरफ मजदूरी मिलती नहीं है और अगर मजदूरी मिले तो हुकूमत के टैक्स इतने ज्यादा हैं, कर्जे वो लेते हैं, अयाशियां वो करते हैं, अदा हम करते हैं, उनके कर्जे हम चुका रहे हैं। अब हमने तो कोई कर्जा नहीं लिया, हमने कौन सा कर्जा लिया? आपने लिया हुकूमत से कोई कर्जा लिया है? किसी ने नहीं लिया। कर्जा हुकूमत ने लिया, हुक्मरानों ने लिया। लिया किस लिए? हमें क्या दिया? हमें क्या बना कर दिया? अपनी अयाशी पर खर्च किया और फिर हमें कहा कि टैक्स दो, बिजली का बिल दो, गैस का बिल दो, पानी का बिल दो, फलां का बिल दे दो। आपको एक अजीब बात बताऊं, आप जहां बैठे हैं ये कौन सी जगह है? हाँ, मस्जिद है ना, अल्लाह का घर है। अब हमारे पास यहां पड़ी हुई होगी बिजली का बिल, मैं अभी आपको वो बिजली का बिल दिखा दूं, उसमें हम टीवी का बिल भर रहे हैं। किस चीज का बिल भर रहे हैं? टीवी का। इधर टीवी कहां लगी हुई है? जालिमों लेकर आओ टीवी, चलाओ, हम भी कोई थोड़ा सा नजारा करें, तुम भी नजारा करो। बिल तो हम वैसे भी देते हैं ना, फिर तो लेकर आओ। अब डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का। वो अमीर साहब बताते थे, ये अभी 7 माह इन्होंने अफगानिस्तान में लगाए, हमारे अमीर साहब ने 7 माह अभी इन्होंने अफगानिस्तान में लगाए। वहां बिजली का बिल, वो इतनी खूबसूरत बड़ी पगड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आता है, जी बताओ कितना बिल आया है? इतना आया है, बस मोहर लगा दिया, पैसे करके दे दिए, चला गया। हुकूमत देती है, हुकूमत वो पगड़ी वाला वो देता है मस्जिद का बिल और इमाम को कहता है इमामत की तनख्वाह भी लो और आप SHO भी हैं, आप मस्जिद के इमाम भी हैं और आप थाने का SHO भी हैं, आप तहसीलदार भी हैं, आप कमिश्नर भी हैं, आप डिप्टी कमिश्नर भी हैं, आप इमाम, इसकी तनख्वाह अलग लो, आप SHO हैं, उसकी तनख्वाह आपको अलग देंगे। श्रुति खराब नहीं करता है, क्यों? उसको जो मिल रहा है। 50, 60, 70 साल उन्होंने खून बहाया, लेकिन उनको कुछ मिला। हमें क्या मिला 75 सालों में? कल्लाश और फकीर कर दिया हमें। बहरहाल चलो रहने दो, ये दिल का एक दर्द है, जब हम चल पड़ते हैं तो फिर रुकने का वो नाम जबान पर आता भी नहीं है। तो अल्लाह पाक का तीसरा वादा यह है कि शुक्र करोगे तो ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो इंसान शुक्रगुजार बने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबे का तवाफ कर रहा है, एक आदमी दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे कलीलीन में से बना दे, ए अल्लाह मुझे कलीलीन में से बना दे, जो तोड़े हैं मुझे उन तोड़ों में से बना दे। हजरत उमर ने कहा ये कौन सी दुआ है? पकड़ा उससे, क्या दुआ मांग रहे हो? उसने कहा यही मांग रहा हूं कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल कलीलीन, अल्लाह मुझे तोड़ों में से बना दे। उसने कहा मकसद क्या है? फरमाया अल्लाह पाक फरमाते हैं वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं। तो मैं ये अर्ज करता हूं अल्लाह मुझे भी उनमें से बना दे, अल्लाह मुझे उनमें से बना दे, मैं शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। तो शुक्र करें, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, महल में रखा है तो तेरा शुक्र है।
आम घर में रखा है तो तेरा शुक्र है, झोपड़ी में रखा है रब्बा तेरा शुक्र है, भूखा रखा है रब्बा तेरा शुक्र है, पेट भरा हुआ रखा है तेरा शुक्र है, जिस हाल में रखा, अमीर बनाया तेरा शुक्र है, गरीब बनाया तेरा शुक्र है, दरमियाना आमदनी वाला बनाया तेरा शुक्र है, कम आमदनी वाला बनाया तेरा शुक्र है। जिस हाल में आप राजी उस हाल में मैं तेरा बंदा, मैं भी राजी। ये है शुक्र। तो अपने आप को शुक्रगुजार बनाए। चौथा वादा, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदो मेरा वादा ये है कि जब किसी बस्ती में अल्लाह का कोई नबी मौजूद होता है, जब किसी बस्ती में किसी इलाके में अल्लाह का कोई नबी मौजूद हो, फरमाया वहां में अजाब नाजिल नहीं करता। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मेरे हबीब आप मक्के में मौजूद हैं, मैं देख रहा हूं पत्थर बरस रहे हैं आपके मुबारक जिस्म पर, मैं देख रहा हूं मट्टी उठाकर आपके चेहरे पर डाली जा रही है, मैं देख रहा हूं। ये गलीज लोग अपना गलीज लुआब दूब उठाकर आपके चांद और सूरज जैसे चेहरे पर तूकते हैं, मैं अल्लाह देख रहा हूं। आप सिजदे में जाते हैं, ये ऊंट की उजड़ी आपके पीठ मुबारक पर रख लेते हैं, मैं देख रहा होता हूं। लेकिन मैं इनको सजा नहीं देता, मैं इनको अजाब नहीं देता, मैं इनको तबाह बर्बाद नहीं करता, इसलिए कि मेरे पैगंबर आप मौजूद हैं। मेरा कानून यह है कि जब नबी किसी कौम बस्ती में मौजूद होता है, मैं उनको सजा नहीं देता, मैं उनको हलाक नहीं करता। और अल्लाह का कानून यह रहा है, जिस बस्ती को हलाक किया नबी से फरमाया निकल जाइए, वो निकला, बस्ती वाले हलाक हो गए। और अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा दूसरा वादा, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह पाक फरमाते मेरा वादा है मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, मेरा वादा है मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। ए अल्लाह अजाब तो आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। फरमाया बंदे शर्त भी सुन लेना, मेरा वादा तो है लेकिन शर्त यह है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। जब मेरे बंदे इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं तो इस्तिग़फ़ार करने वाले मुआशरे और बंदों को मैं अजाब में मुब्तला नहीं करता। ये मेरा वादा है कि जब तक आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी अजाब नहीं आएगी। अब हमें अगर अल्लाह पाक के अजाब को वापस करना है, अल्लाह पाक के अजाब से बचना है, तो इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फिरुल्लाह किसको नहीं आता? हर बंदे को आता है अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस्तिग़फ़ार करें, चलते फिरते उठते बैठते। और रमज़ान में जो 4 चीजें हैं, 2 न करने हैं, 2 ज्यादा करने के हैं, उनमें से एक इस्तिग़फ़ार करना है कि इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करें। और रब का ये वादा है कि मेरे बंदे इस्तिग़फ़ार करेंगे तो मैं उनको अजाब नहीं दूंगा। अल्लाह पाक हम सबको रब के इन 4 वादों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।